So let's start. Okay. Can you share your screen and show me your mock so I can see where is your weakness and we can improve it. वे कहाँ से शो होगी पहले स्क्रीन? आप यहाँ शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है वहां पे जाएं, या आप अपनी मोक की ना स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। अगर आपको आती है करने तो मुझे बताएं, वरना मुझे स्क्रीनशॉट भेजें व्हाट्सएप पे, मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। एक सेकंड करता हूँ शेयर। हाँ, share. Okay, so you know that PT is based on four modules, right? यस। And you haven't given any exam before, no? Only mocks. Okay, so I usually give first session as a demo, and I give tell people about their weaknesses, and I try to improve it in the demo session. If they find comfortable, if they think there is an improvement, then rest I take paid sessions usually, and I'm confident that they don't need to have much sessions. Only 3 and 4 sessions are enough. So did you send me? You have WhatsApp me, right? सेंड कर दिया मैंने। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजते तो ज्यादा बेहतर था। Anyways, let's see if I can open it. Five. See, इस तरह आपका टेस्ट नहीं आ रहा है, मॉक नहीं आ गया, एक सेकेंड। Okay, so this is your score and you need 65. You need improvement. Your speaking. Okay, let's start from speaking. Let's see where you need improvement. Check score analysis. यहाँ से देखते हैं. If you, okay, let me share the screen with you for a minute. Give me a second. Share screen. Can you see the screen where there is the app unique front page? यस मैम। Okay, so if you look at here, your if you want 65, you should put a target 65 over here. Anyways, so you're speaking in your read aloud, you're scoring 61%. Your read aloud has some issues. Okay. I will यस। make you read one paragraph and I will see what issue you have. Your repeat sentence has issue, yours describe image has issue, your retell lecture and answer short questions. Okay. So let's start from the speaking, and I will show you a paragraph and let's see how you read it. We will not see how much you are scoring because definitely you are connected through my laptop, and if we submit the score, it will not get good. Definitely because we are sharing computers, right? तो वो आवाज की वजह से ना आपको स्कोर कम देगा. But I will get to know what mistakes you are making. So let me share तो uh, the speaking तो thing. रियल एग्जाम में भी तो लैपटॉप ही होगा ना? और सॉरी नहीं, कंप्यूटर वहां पे भी सिस्टम है, होगा। सिस्टम है. मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मेरा कंप्यूटर यूज कर रहे हो ना, तो आप मेरे कंप्यूटर से जब बोलोगे तो वॉइस एको करेगी, तो वो आपका स्कोर अच्छा नहीं देगा, ये कहना चाहिए. ठीक। ठीक। तो कोई नहीं, आप अपने उस पे पढ़ लीजिएगा और मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं वहां देख लूंगी उसको. ओके, लेट्स सी. एक तो वीकली ठीक। और दिसंबर प्रिडिक्शंस पे जाते हैं, ऑन प्रैक्टिस पे जाते हैं. ठीक है. अच्छा. अच्छा, आप, मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ, आप इसको पढ़े. लेट्स सी आप कैसे पढ़ते हैं. पढ़े इसको जोर से पढ़े. This report including the huge of microeconomics such as the effects of tax reform, a new industrial policy, and understanding how to deal with the uncertainty inherent in global financial market, but it also cover key areas of micro policies such as boosting rates of productivity. You made few mistakes. One, you are not stopping at the commas. Okay, you need to stop for 1 second at the comma. Number two, you are making mistakes reading the words. Why are in you such a hurry? आपको पता है जल्दी का काम शैतान का होता है. आप लफ्ज पूरे नहीं पढ़े, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स खा गए, आपने सिर्फ माइक्रो पढ़ा. यू डिडंट रीड माइक्रो इकोनॉमिक्स, यू जस्ट सेड माइक्रो.
Secondly, you didn't read, you skipped some words. Like I think you didn't read text. So the mistakes is you are not stopping at the comma, you are in a hurry and you are skipping words. Please don't do that. Okay. See how I read it. This report includes a huge swath of microeconomics, such as the effects of tax reform, a new industrial policy, and understanding how to deal with the uncertainty inherent in global financial market. But it is also covers key areas, but it also covers key areas of macroeconomic policies, such as boosting laggardly rates of productivity. Now, I also was stopping somewhere because obviously I was reading the words first time, right? And if you don't know how to read the word, Mhm. you can skip one or two words. Now, let me read again because obviously I was practicing. Now let's read again. Mm. This report includes a huge swath of macroeconomics, such as the effects of tax reform, a new industrial policy, and understanding how to deal with the uncertainty inherent in a global financial market. But it also covers key areas of macroeconomic policies, such as boosting rates of productivity. मुझे legally नहीं पढ़ने आ रहा था, मैंने फ्लो में वो लफ्ज छोड़ दिया, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ठीक। एप्यू नहीं आपको मिस्टेक देगा, मगर पियर्सन आपको ये गलत नहीं मानेगा क्योंकि आपने फ्लुएंसी में बोल दिया। एप्यू नहीं ज्यादातर फ्लुएंसी को देखता है, ठीक। ठीक है। सो ठीक है। द थिंग इज इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड यू कैन स्किप इट, एक दो वर्ड्स आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। So did you see ठीक। what mistake you were making and what mistakes, how I was reading it? Okay, let's go another parts. Let's see your mock score again. And 1 minute. So you need to improve. Your score is not that bad. Inshallah, you will get your desired score. The only thing is that how you you make the improvements where you are have a bit difficulties, a small bit difficulties, right? Okay. Okay, now let's see what mistakes you are making in what marks you are gaining in writing. Okay. ठीक। Um, इस तरह देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये तो सबसे आसान पार्ट है, यहाँ पे तो फुल मार्क्स बड़े आसानी से मिलते हैं। हैड बेटर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर अपनी बड़ी जल्दी की है, जल्दी का काम शैतान कहा। ये लफ्ज तो वहां लिखा हुआ होगा ना, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक आपने की है जी। और इस पे अच्छा खासा मार्क्स काटे हैं उन्होंने। देखिए, अच्छा इसको आप, went to university। हाँ वेंट टू यूनिवर्सिटी। देखिए ये चीज तो पैराग्राफ में एज इट इज लिखी हुई है, तो यहाँ पे तो मिस्टेक की गुंजाइश बनती नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो है ना हम्म। आपने पैराग्राफ से उठानी होती है, तो यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक करना बेवकूफी है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एंड दिस इज गुड, योर essay is good, The grammar। also understand. It's okay, it's fine, this much is good. So you don't need to worry about essay. Acha, be very careful. From where did you get this template? वो दोस्त ने सेंड किया था, उसने भी रिसेंटली दिया था ना टेस्ट, तो उसके आए थे 69 आए थे। 69 थे राइटिंग में। जी। नहीं, राइटिंग में मेरे ख्याल इसके 68 थे, लिसनिंग और स्पीकिंग में उसके 90 थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो दैट मीन्स ये ऐसे काम कर रहा है, दैट मीन्स ये टेम्पलेट काम कर रहा है। उन लोगों का जी। ऐसे फॉलो करें जी। जिन्होंने किया हो। इजी भी और याद भी हो रहे थे। जी वो उसके दोस्तों ने आगे किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक सम पीपल दे आर मेकिंग यूज ऑफ अ टेम्पलेट बट दे आर नॉट गेटिंग मार्क्स इन द रियल एग्जाम. So that means the template is not working. But if your friend used it and he got a score, then it's okay. You can stick with this template. कोई भी और template ना करें आप, आपका इस पे हाथ बैठ चुका है तो इसी को कंटिन्यू रखें। अगर कोई कहता जी। है कि ये अच्छा नहीं है, ये वाला यूज कर ले, तो आप उनकी बात नहीं सुनिएगा, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं ना कि दोस्त ठीक है। आजमूदा है, ये ना ट्राइड एंड टेस्टेड है टेम्पलेट। यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है, मैं बता दूंगी कि यहाँ आपने करना क्या है और किस तरह आपने मिस्टेक को अवॉइड करना है। एक सेकेंड। ठीक है।
ठीक है, 2 3। हाँ, ग्रामर देखिए ना, अब जब बंदा गलती करते हैं ना तो दो जगह से मार्क्स कटते हैं, एक यहाँ से कट रहा है, एक यहाँ से कट रहा है, क्योंकि वही अल्फाज है ना, वही अल्फाज आपकी वोकैबुलरी जी को दिखा देगा। डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपको ग्रामर भी नहीं आती, वोकैबुलरी भी नहीं आती। मतलब जाहिर सी बात है, अगर जी वोकैबुलरी गलत होगी तो उसका मतलब है कि आपको ग्रामर की भी समझ नहीं है, राइट? क्योंकि बेटर को आपने हाँ जी गलत किया तो वो ग्रामर yes, की मिस्टेक भी हो गई। तो देखिए वो दो, एक एक चीज में आपके दो जगह से मार्क्स खाए, तो इसका उसमें बताने की कुछ ज्यादा है नहीं। आपका ब्लंडर इस सेंस में है कि आपने देख के भी स्पेलिंग गलत लिखी है, डेफिनेटली वहां से मटेरियल उठाया होगा आपने, जो पैराग्राफ है, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे इसकी परेशानी की इतनी जरूरत नहीं है आपको। राइटिंग आपकी अच्छी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैंने बता दिया कि आपने छोटे से हल्के से ब्लंडर किए हैं, इतनी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। अच्छा, रीड अलाउड को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं रीड अलाउड आपका। ये सबसे बुरी राइटिंग रीडिंग ही है। ये सबके मसले हैं। इसमें तुक्के ही लगे हैं हमें, जितने भी लगे हैं। यहाँ पे आपका रीडिंग है। अच्छा, सबसे पहले ना आपने इसको 80 क्यों रखा हुआ है? अगर आपको 65 चाहिए ना, तो आप जाके ना वहाँ जी 65 ही रखे, ताकि ना आपको कम से कम डर खौफ तो ना हो ना। कहाँ से जाके चेंज करने के? आई थिंक यहाँ से टारगेट जाके ठीक हो। से, हाँ, ताकि वो आपको कम से कम डर तो ना लगे, जी ठीक। एक मोटिवेशन तो मिले। अच्छा, लेट्स से आपने मुझे ठीक है। दिया। हम्म, reading, sorry, यहाँ से देखते हैं। अच्छा, रीडिंग का देखिए, इसमें द रीडिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट? ठीक है। जी अब आप यू इफ यू लुक हियर, आई डोंट नो हाउ मच आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, आपको अल्फाजों के मीनिंग्स पता भी हैं कि नहीं पता, आप उनको अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं रीड अलाउड को, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग, वो मुझे ये नहीं पता। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या यू आर जस्ट रीडिंग द लाइंस विच हैव द ब्लैंक्स? यही जिसमें ब्लैंक हो वही रीड करता हूँ। ठीक है। एंड आर यू एबल टू कंप्लीट द रीडिंग पार्ट इन टाइम? कभी कभी। कभी कभी इसलिए ना क्योंकि आपको टाइम मैनेज नहीं हो रहा ना। चलो, रीड अलाउड में भी देखिए आपके मार्क्स गिर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ रीड अलाउड में आपके हम्म कहाँ पे मिस्टेक है, वेट अ सेकेंड। फिर फिल इन द ब्लैंक रीडिंग में भी आपके गिर रहे हैं, इसका मतलब है आपको स्पेलिंग्स नहीं पता काफी चीजों की, स्पेलिंग भी, और लफ्जों को इस्तेमाल, वो जो ब्लैंक्स जी दी हुई है उसको फिल कैसे करना है। मे बी यू आर डोंट नो हाउ टू डू दैट, ओके। ऑल्सो रीड अलाउड, यस सॉरी, रीऑर्डर इज ऑल्सो ट्रिकी, बट उसकी भी ट्रिक्स होती है। समराइज रिटन टेक्स्ट तो बहुत आसान है, उसमें भी हमने अभी दिखा दिया ना कि आपकी वो सिर्फ ब्लंडर्स थी, अभी देखा था ना हमने, आपके 5.5 थे। हाँ जी तो अगर देखिए वहां पे हाँ आप जी 7 आ जाएंगे तो यहाँ आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ठीक। इसके भी ट्रिक्स होती हैं, काम गई तो कर गई तो ठीक है, वरना इतना कोई बड़ा मसला नहीं। इसका हाईलाइट करेक्ट समरी भी इसकी ट्रिक्स होती हैं, वो भी आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। चले, अच्छा, अब ठीक आते हैं राइटिंग का, आपका इतना मसला नहीं है। अब जैसे लिसनिंग के हम्म, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं? लिसनिंग, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। चलो मैं इसमें देखती हूँ। देखिए ये इसमें मैं देखती हूँ कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अभी देखते हैं, ओके। यहाँ इतनी आपको हेल्प की जरूरत नहीं है, अगर आपको 65 चाहिए तो ठीक है, आप ला रहे हैं। 69 आपके आ रहे हैं, फिर भी आप 75 को माइंड में रखेंगे ना तो 65 आएगा, क्योंकि कुछ गलतियां आपसे होंगी, कुछ आर्टिफिशियल आपकी चीजों को नहीं जी समझ सकेगा, एआई जो इनकी है। तो अगर आप 75 माइंड में रखेंगे तो हम्म, 65 पे आके गिरेंगे, राइट? अगर आप 65 माइंड में रखेंगे तो आप 55 पे आके गिरेंगे। बस थोड़ी सी आपको गाइडेंस ठीक की है। जरूरत है, वरना आपका इतना अच्छा। ये क्या है? रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस भी मुझे देखना पड़ेगा कि आप वहाँ क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। ये भी बेटर है आपकी, ये अच्छा है। अगर आपको 65 चाहिए तो ठीक है। फिर द ब्लैंक लिसनिंग भी आपकी अच्छी है, दैट मीन्स आपका स्पेलिंग का इतना मिस्टेक नहीं है, मसला नहीं है, स्पेलिंग्स आपको आती हैं, ये अच्छी बात है। रिटेल लेक्चर भी आपका अच्छा है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये भी आपका अच्छा है। इसमें सिर्फ एक दो चीजें ख्याल ध्यान रखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे।
आंसर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान ठीक है, है। इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगी, आपके फुल मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक हो। इसकी भी एक ट्रिक है। मिसिंग वर्ड की भी एक ट्रिक है, ये बहुत आसान है। इन सब की ना ट्रिक्स हैं। ठीक है। असल में वो ये दे वांट टू सी दैट आर यू एबल टू डू अ ट्रिकी एग्जाम इन 2 आवर्स। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप इतनी आईक्यू लेवल जी। इतना अपना अच्छा है कि आप जो है 2 घंटे में, हालांकि 2 घंटे में आप किसी की अंग्रेजी नहीं जान सकते, तो सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, अगर वो आपको समझ आ गई तो वो आप कर लोगे, एग्जाम आपका 65 आराम से आ जाएगा, इतना बड़ा आपको मसला नहीं है। बस थोड़ी सी आपको ठीक है। गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं अभी जाके देखती हूँ आपका स्पीकिंग पोर्शन, कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो रिपीट सेंटेंस में। स्पीकिंग में मैंने आपको बता दी है, आपकी एक मिस्टेक है, यू आर नॉट स्टॉपिंग एट द कॉमा। नंबर 2, यू आर स्किपिंग वर्ड्स। नंबर 3 जो है, आप जल्दी में ना जो लफ्ज नहीं आ रहे उसको स्किप कर दें, ज्यादा नहीं। ठीक है, उसका देखते हैं रिपीट सेंटेंस का। देखते हैं आप रिपीट सेंटेंस में क्या कर रहे हैं। You may allowed the reading book without any lister. सॉरी, अच्छा, ओके, आपने ये पढ़ा है, वो देखें वो क्या कह रहा है। पहले मुझे बताया आप रिपीट सेंटेंस करते कैसे हैं। करते एक फ्लो के साथ तकरीबन 6 से 7 वर्ड जितने बोले जाएं। देखिए मैंने बताऊँ क्या किया था, मैं जब मेमोरी से कर रही थी ना, मुझसे नहीं हो रहा था, मैं इनके इनिशियल्स लिखती हूँ। जैसे यू का वाई लिख दिया, मे का एम लिख, ठीक। एन का एन लिख दिया, बी का बी लिख दिया, ए का ए लिख दिया। साथ में मैं दिमाग में भी रिपीट कर रही होती हूँ, ठीक है। और साथ में मैं ठीक। इनके इनिशियल्स भी लिखती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि जी क्या लफ्ज थे, जुमला, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था। तो अगर आप 65 ले रहे हैं तो आप भले 8 वर्ड्स लिख लें, अगर ये ज्यादा है, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर सारे 15 नहीं याद, तो आप 8 के एटलीस्ट, 8 नहीं मैं 10 कहूंगी, 10 के जो है वो आप इनिशियल्स लिख रहे, थोड़ी थोड़ी शुरू में ना, ये थोड़ा आपको तंग करेगा, मगर बिलीव में आप 5-6 इस तरह करेंगे ना, आपकी हैबिट हो जाएगी। आप जो है, ये जब सेशन एंड होगा आप रिपीट सेंटेंस में जाएंगे, 11 कीजिएगा इनिशियल्स लिख के। आप मुझे दुआएं देंगे कि आप ठीक है। ना वो आपको ग्रिप आ गया, क्योंकि माशाल्लाह अभी आप जी यंग जी। हो, पिक्चर से मुझे पता चल रहा है। तो यंग जो लोग होते हैं ना, उनकी उनके सेंसेस बड़े अच्छे काम करते हैं, आंखें, हाथ, कान, नाक ना। तो जब आप लिखते हो तो आपकी दिमाग, आंखें, कान सारी एक जगह कंसंट्रेशन में होती है, साथ साथ दिमाग में रिपीट भी करते जाए जुमला में। क्योंकि आपने जिस तरह बोला है ना, ठीक है। ये जो मैं देख रही हूँ, तो आपको सीक्वेंस अब ये You है may यू। allowed the reading book without any lister. ठीक है, अब ये रजिस्टर क्या था। अगर आप रीडिंग आर और एल लिखते हैं ना, तो आपको पता होता है कि ये रीडिंग लिस्ट की बात हो रही है। अगर आपने लिस्टर लिखा है तो आपने दो लफ्जों को मिक्स कर दिया। देखिए ये मे नॉट बी अलाउड टू रीड ठीक। एनी बुक्स विदाउट द रीडिंग लिस्ट। अब अपना सुने, अपना सुने और इस लाइन को पढ़ें। You may allowed the reading book without any lister. तो देखिए आपने नोट स्किप किया, अगर आपने इनिशियल एन लिखा हुआ होता ना, आपको याद जी। होता तो उसने नोट बोला था। फिर सुने, ठीक। You may allowed the reading book without any lister. तो आपने बी भी स्किप किया है, जी अगर आपने सर। इनिशियल लिखा होता ना, आपको याद होता। ठीक है, ठीक फिर है। सुने। You may allowed the reading book without any lister. ठीक है, टू भी आपने किया। विदाउट उसने बोला ही नहीं है, आपने विदाउट बोल दिया। एनी बुक तो आपने बोला ही नहीं है, सुने। You may allowed the reading book without any lister. अच्छा, बुक आपने पढ़ा है, रीडिंग नहीं कहा उसने, रीड एनी था, आपने रीडिंग कर दिया। अगर आप आर और ए लिख लेते हैं ना, तो आपको याद होता है कि रीड एनी की बात हो रही है। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। असल में ये होता है, अंग्रेज बोलते हैं ऐसे हैं कि दो लफ्जों को मिक्स कर देते हैं। ये बोलते हैं ऐसे है, चबा चबा के बोलते हैं। जी। You may allowed the reading book without any lister. ठीक है, अच्छा, इसमें एक ये है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो वो बोल लेता है बंदा, और वो सेशन शुरू हो जाती है रिकॉर्डिंग, और आप लिख रहे होते हैं, कोई बात नहीं। मेरा हमेशा ऐसा होता था कि शुरू के 3 सेकंड मेरे लिखने में चले जाते थे। अगर बहुत बड़ा जुमला होता था ना, मैं पूरा नहीं लिखती थी, मैं सिर्फ 8 9 10 लिख लेती थी, बाकी के दिमाग में याद कर लेती थी। ठीक है, तो अगर आपको 65 चाहिए तो ठीक। 8 भी अगर इनिशियल्स लिख लोगे तो आपका हो जाएगा। चले अब आपका देखते हैं ठीक है। डिस्क्राइब इमेज कैसा है। डिस्क्राइब इमेज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 76% है। चलो इस पे ज्यादा मैं इम्प्रूवमेंट का आपको नहीं कहूंगी, ये दो चीजें इम्प्रूव करें आप,
रीड अलाउड एंड रिपीट जी सेंटेंस, क्योंकि ये रीडिंग में भी 30% देता है और ये भी, इन दोनों का ना बहुत हिस्सा है उसमें। अच्छा, जी आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का ना मैं एक तो आपको बता देती हूँ और ट्रिक क्या है, इंशाल्लाह आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, पहले आप इसका आंसर करें, फिर मैं देखती हूँ आपने क्या मिस्टेक की है। इसका जवाब What is the दीजिए। term for a large, luxurious car, often driven by a chauffeur? इसका जवाब दे, क्या होगा? मैम आवाज ही नहीं सही है। अच्छा, एक सेकेंड, दोबारा सुनिए, कान थोड़ा ध्यान देना उसकी तरफ। What is the term for a large, luxurious car, often driven by a chauffeur? आवाज नहीं ठीक आ रही। वो पहले भी आपने जब रिपीट सेंटेंसेस वहां सपोज चलाए थे ना, तो आवाज नहीं थी ठीक आई। अच्छा, खैर ये नंबर है, आप अपने पास खोले, ये नंबर है 2300। चले मैं इसका आंसर बता दूँ, नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा। जी 2300 खोले अच्छा। अपने से, ऐप यूनी में इसका है 2300। आपके मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं ना, आपको उसका आंसर नहीं आता। हम्म कोई बात नहीं, आप जरूरी नहीं है कि आप उसके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिए, यहाँ जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं चल रहा। Students must attend a safety course before entering the engineering workshop. Student must be entered before entering the workshop. कौन सा? दोबारा पढ़े, नहीं आप कुछ रिपीट सेंटेंस कर रहे हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। जी सॉरी, बस इसमें तो आ गया 70। Student must be entered before entering the workshop. 76 आए भाई। नहीं नहीं, ये वाला करें ना, 2300 आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। हम्म। What is the term for a large, luxurious car, often driven by a chauffeur? नो आइडिया। ये आपका आंसर है, नो आइडिया? ऐसे आंसर नहीं देते, ऐसे आंसर नहीं देते। अगर आंसर नहीं आता ना, तो उसका ट्रिक ये है कि उस सवाल को दोबारा पढ़ ले। ठीक जैसे है। उसने कहा व्हाट इज द कार कॉल्ड ड्रिवन बाय अ शोफर, अब शायद इनमें से कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपको मीनिंग ना आते हो, तो उसका पता, मुझे तो खैर पता है, पता है इसको कहते हैं लिमोजीन। हालांकि मतलब मैंने ये सवाल पहले नहीं किया हुआ, बट मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत चीजों की ना। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको क्वेश्चन को रिपीट कर ले विद कॉन्फिडेंस। आप जरा बोले, द लार्ज ठीक हूँ। कार ड्रिवन बाय अ शोफर इज कॉल्ड अ कार, बोल दें इस तरह। मतलब आप 3-4 वर्ड्स ना फ्लुएंसी के साथ बोल दें, जो उसने कहा है उस, सेंटेंस में से हाँ उस फ्रेज को बोल दे फ्लुएंसी के साथ। अगर जैसे शोफर नहीं बोलने आ रहा, तो आप ये तो द लार्ज कार ड्राइवन बाय, इस तरह करके अ ड्राइवर, तो 3-4 वर्ड्स आप बोल दे, उसको कुछ ना कुछ जवाब दे, ठीक है? ठीक है। तो चुप ना रहे। आपने जीरो इसलिए ऐड होना, चले आपका एक देखते हैं आपके जीरो क्यों आए। मैं देखती हूँ वहाँ आपका नहीं जो, वो ये स्किप कर दिया था ना मैंने ये पे। नहीं करें कुछ ना कुछ, आप देखिए उसको कुछ ना कुछ सुनना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो आपकी जनरल नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठा, वो सिर्फ आपकी फ्लुएंसी चेक करने के लिए बैठा है कि क्या फ्लुएंटली वो बोल मुझे पाते हो कि नहीं जी पाते। ठीक है। तो देखते हैं आपने क्या जवाब दिया उसको। कुछ बोला ही नहीं है, क्या मैं सुनूं आपको? Seconds. सवाल उसने क्या पूछा है, आपने पता नहीं क्या बोला है, पता नहीं उसने क्या पूछा। Seconds. व्हाट डू बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर, ये तो इतना आसान है, फूलों से क्या कलेक्ट होती है? तो आपको नहीं पता था ना, तो आप हम्म, लिखते बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स, इस तरह करके छोड़ देते हैं, अगर आंसर नहीं आ रहा तो ठीक है। जैसे ये वाला था, व्हाट इज अ जॉब टाइटल फॉर समवन हु मेक्स मील्स इन अ रेस्टोरेंट। तो ये तो पता है, रेस्टोरेंट में जो है वो बावर्ची होता है बेचारा, तो आप बोल देते थे जॉब टाइटल फॉर समवन हु मेक मील इन रेस्टोरेंट, इस तरह बोल दे, कॉन्फिडेंटली जुमले को बोल दे, फंबल किए बगैर। ठीक है। तो देखिए
और लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, लोग ग्रुप में कह रहे होते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को इतना ध्यान ना दें, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। भाई एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है, अगर आप चीज को स्किप करोगे, कुछ आप स्किप कर रहे हो, कुछ आपसे गलतियां होंगी, कुछ आर्टिफिशियल आप जी समझ नहीं सकेगा, तो आपके तो 3 जगह नंबर जा रहे हैं। जी ठीक है, तो आप उसको कुछ मवाद कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो उसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देगा ना। अब कुछ आप खुद स्किप कर रहे हो, कुछ जो है वो खुद नहीं समझ पा रहा, कुछ आप गलतियां भी कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो मैंने आपको अभी चीजें बताई हैं आप यस उसको ट्राई करें। देखिए, आप रिपीट, रीड अलाउड में आप कॉमास पे रुके, लफ्जों को स्किप खाए ना, पूरा पढ़ें, अगर नहीं आता तो वो वर्ड स्किप करें। दूसरा, रिपीट सेंटेंस में इनिशियल्स ठीक है लिखें और उसको करें, और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 ट्रिक्स करें। आप जितना टाइम लेना है, 1-2 दिन टाइम लेना है, टाइम लें, देखें अगर आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है। सिर्फ स्पीकिंग वाला सेक्शन दे दें, अगर इंप्रूवमेंट आ रही है तो मुझे बताएं, ठीक है वरना मुझे ना, फिर हम देखेंगे कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं। वरना मुझे जबरदस्ती ना किसी के पैसे नहीं चाहिए कि उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही और मैं उससे जबरदस्ती सेशन लिए जा रही हूँ पैसे, आप खुद नहीं देंगे मुझे पैसे। यस ऐसा ही है ना? ठीक है चले ठीक है। मुझे ऐसे ही आप देखिएगा, बताइएगा, क्योंकि मैंने एक खातून को डेमो सेशन दिया था, वो डेमो में उसकी इतनी इंप्रूवमेंट हुई कि उसने डेमो के पैसे दे दिए थे मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है खुश होकर उसने दिए। और उसके बाद उसने सिर्फ 2-3 यस सेशन लिए मुझसे। और दीपक ने ग्रुप में मैं शेयर किया था, उसके 89 मार्क्स है, हालांकि वो खुद भी बड़ी कमिटेड थी, हार्ड वर्किंग थी, जो बात है अगले बंदे के ऊपर भी है, तो वो कमिटेड थी, हार्ड वर्किंग थी, उसने टाइम लिया अपना और इम्प्रूव किया। मैंने सिर्फ उसको गाइड किया। So the thing is, it's up to you how serious you are, and I can just guide you. यस Okay? यस So I hope I will ओके get good news from you tomorrow that you have improved in your read aloud and your repeat sentence. ठीक Okay. See you. Bye. मैं इसको एंड कर ओके रही हूँ, ठीक है? और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वापिस